Hello everyone, welcome back to the channel. So we are starting with the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. This is the first lecture in the series for Rajasthan APO examination and let's start with it. तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सो दैट वी गेट अ जिस्ट ऑफ व्हाट kind of questions are being asked from this particular legislation. First question, which was from this act, was which one of the sections of the SC/ST Act 1989 relates to punishment for offences of atrocities? तो ये बहुत प्लेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग टू वरी अबाउट. And the second question, which came from this act only, was which one of the following is not correctly matched? तो कुछ sections दिए हैं, that is definition section से, और साथ में जो डेफिनेशंस दी गई हैं उनको वो वाला पेयर निकालने को बोला है जो करेक्टली मैच नहीं है. तो अगेन दिस इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन. तो द थिंग दैट is very clear from the past year questions is that very direct questions are asked from this act. तो सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है इस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज दैट यू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन रिटेन एज मच एज पॉसिबल. Okay, so let's start with it. The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. It's Act number 33 of 1989. Okay, so first things first, Act number, enactment date, commencement date, and the last amendment, uska date and Act number are very important. Also the preamble. So these are the preliminary things that you have to learn. So this is your Act number 33 of 1989 and इसका enactment date है 11 September 1989. But इसका commencement date है 30 January 1990. ठीक है, तो 11/9/1989 में क्या हुआ, स्टार्ट इनेक्ट किया गया, बट इसको कमेंसमेंट कब ये फोर्स में आया, वो 30 जैन को हुआ. तो जनरली आपको दो डेट्स मिलेंगी, एक जब वो एक्ट कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया, बट उसका जो कमेंसमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव है और वो आने वाली डेट से शुरू किया गया, तो एक डेट अपॉइंट कर दी गई. सो दैट इज़ द डेट ऑफ कमेंसमेंट और व्हेन द एक्ट केम इनटू फोर्स. ठीक है, वो जनरली आपके सेक्शन 1 में आपको दिया हुआ होता है. काफ़ी बारी सेम डेट भी हो सकती है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा. नाउ preamble. An act to prevent the commission of offences of atrocities against the members of scheduled castes and scheduled tribes, to provide for special courts and exclusive special courts for trial of such offences, and for relief and rehabilitation of victims of such offences, and for matters connected therewith or incidental thereto. ठीक है, यहाँ पे जो मेन कीवर्ड्स हैं वो ये हैं कि एक तो ये प्रिवेंट करता है ऑफेंस जो एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ SC/ST होते हैं. उसके बाद स्पेशल कोर्ट्स और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करता है ट्रायल के लिए. ठीक है, थर्डली रिलीफ और रिहैबिलिटेशन जो विक्टिम हैं इन ऑफेंसेस के, उसके लिए प्रोवाइड करता है. सो दीज आर द 3 things that the preamble provides for. Another thing, the special courts and exclusive special courts, it was amended in the 2016 act, which is not that important, but just to keep it in mind. Now let's start with the sections. So first is your chapter 1 preliminary, and the first section, it starts with short title, extent and commencement. तो जनरली यही होता है फर्स्ट सेक्शन एक्ट्स का, and followed by the second section definition. So these two are very easy to remember. ठीक है, subsection 1 of section 1 states this act may be called Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. Plain and simple. What is the short title? It's given here. Second subsection, it extends to whole of India. ठीक है,
पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है. एंड थर्डली वॉज द कमेंसमेंट डेट विच इज़ 13 जनवरी 1990 as the central government has by notification the official gazette appointed. ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजट में बाय नोटिफिकेशन इसको कम इनटू फोर्स का डेट, एनफोर्समेंट डेट जिसे कहते हैं, वो फिक्स कर देती है. सेक्शन 2. सो सेक्शन 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकते हैं. मैच द फॉलोइंग में डायरेक्टली क्वेश्चन एज इन वेयर इज अ डिपेंडेंट डिफाइंड और व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक बॉयकॉट. तो डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़नी है. तो लेट्स डू इट वन बाय वन. फर्स्ट इज एट्रोसिटी. सो ए से एट्रोसिटी याद रहेगा. एट्रोसिटी क्या है? एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3. तो इसको डिफाइन नहीं किया है, सीधा बोल दिया सेक्शन 3 में जो भी ऑफेंस पनिशेबल है वो एट्रोसिटी है. ठीक है. बी में आपका कोड है जो कि इसमें CRPC 1973 दिया है, अब हो जाएगा BNSS 2023. तो दिस वन इज रिडंडेंट. देन कम्स BB, वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडेंट. कब ऐड किया गया? 2016 अमेंडमेंट से. कौन कौन आता है डिपेंडेंट में? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द विक्टिम who are dependent wholly or mainly on such victim for support and maintenance. तो कोई भी किसी का पति, किसी की वाइफ, किसी के बच्चे, पेरेंट्स, भाई बहन, जो भी उस विक्टिम के ऊपर डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट है. यहाँ पे विक्टिम इज द की वर्ड. दैट डिपेंडेंट किसके पर्सपेक्टिव से? विक्टिम के. BC टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक बॉयकॉट. तो लेट्स सी. 4 टाइप्स आर गिवन. पहला है आप रिफ्यूज़ कर दोगे टू वर्क फॉर हायर और डू बिजनेस विद अदर पर्सन. आपने काम करने से मना कर दिया. सेकेंडली, टू डिनाई अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडेड एक्सेस टू सर्विस और कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज फॉर रेंडरिंग सर्विस फॉर कंसिडरेशन. आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, आप काम नहीं करने दे रहे हो, आप कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो पैसों के लिए, जस्ट बिकॉज समवन बिलोंग्स टू अ सर्टेन caste or creed. Third, to refuse to do anything on the terms on which things would be commonly done in ordinary course of business. अगर ordinary course of business में if a person takes 500 rupees and just because someone belongs to SC or ST category, you are offering only 100 rupees, that would fall under economic boycott. And third one covers this mainly, that what is the ordinary course of business that should be followed. Fourth, to abstain from professional or business relations one would maintain with other person. तो प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशंस से दूरी बना कर रखना. तो ये 4 चीज़ें इकोनॉमिक बॉयकॉट में हैं. क्या है? आप काम नहीं करेंगे, आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, है ना, सर्विस उनकी लेने के लिए. तीसरा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो टर्म्स होते हैं आप उसके हिसाब से नहीं कर रहे हैं, आप रिलेशन, बिजनेस रिलेशंस या प्रोफेशनल रिलेशंस नहीं बना रहे हैं. राइट. सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक बॉयकॉट विच हैव बीन डिफाइंड इन हियर इन BC. Clause BC. So remember this is 2(1) BC. Okay. Now BD defines exclusive special court. कहाँ पे था इसका सबसे पहले रेफरेंस? इट वॉज इन द प्रियम्बल. इट मीन्स एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 of 14 एक्सक्लूसिवली टू ट्राई द ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट. हमारे सिलेबस में सिर्फ 9 सेक्शंस हैं, बट फॉर द डेफिनेशन जस्ट रिमेंबर 14(1) में डिफाइंड है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट एंड इट की डेफिनेशन 2(1) BD में दी हुई है. राइट. एक हमने पढ़ा था सबसे पहले एट्रोसिटी, जो कि सेक्शन 3 में डिफाइंड है, एंड हियर 14(1) में डिफाइंड है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट राइट्स. BE shall have meaning assigned to it in subsection 1 of section 3 of the scheduled tribe and other traditional forest dwellers. Recognition of Forest Rights Act 2006. ठीक है.
तो फॉरेस्ट राइट्स क्या हैं, जो कि सेक्शन 3(1) के अंडर हैं, और साथ में ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एक्ट जो है उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों एक्ट्स में है। BF मैनुअल स्कैवेंजर क्या मतलब है, दिया हुआ है सेक्शन 2(1)(g of prohibition of employment as manual scavenger and the Rehabilitation Act 2013। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे रेफरेंसेस हैं कि ये चीज़ कहाँ डिफाइन की गई। सो यू विल हैव टू रिमेंबर द corresponding section also, that where is manual scavenger actually defined. It's in the prohibition of employment as manual scavenger and the Rehabilitation Act 2013, और दिया है 2(1)(g के सेक्शन में, और यहाँ पे कहाँ है 2(1)(b)(f) के में। ठीक है, BG डिफाइंस योर पब्लिक सर्वेंट, ये सेक्शन 21 IPC को रेफर कर दिया है, एज वेल एज एनी अदर पर्सन डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट अनदर लॉ में फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, सो दीज आर योर डेफिनेशंस। देन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स any person in his official capacity under central और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, वो भी इंक्लूड होगा पब्लिक सर्वेंट में, BG। नाउ C scheduled caste and scheduled tribes shall have the meaning in 366 clause 24, article 366 clause 24 and 25। ओके, तो यहाँ पे आपका जो डिफाइंड है वही सेम मीनिंग यहाँ पे भी रहेगा, और ये बताता है सी में। D टॉक्स अबाउट स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन है, एंड स्पेसिफाइड अगेन इन सेक्शन 14। तो स्पेशल कोर्ट भी सेक्शन 14 में ही डिफाइंड है, D क्लॉज बताता है। E स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर means a public prosecutor specified as a special public prosecutor or an advocate referred to in 15। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर में कोई भी PP जिसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेसिफाई किया गया हो सेक्शन 15 में। ठीक है, नाउ EA टॉक्स अबाउट शेड्यूल विच इज अपेंडेड टू दिस एक्ट। EB सोशल बॉयकॉट refers to a refusal to permit a person to render to the other person or receive from him any customary service or abstain from social relations that one would maintain with other person or to isolate him from others। तो 3 चीज़ें, आप कोई कस्टमरी सर्विस जो पर्सन है वो करता है उसको परमिट नहीं कर रहे हो किसी भी काम के लिए, आप सोशल रिलेशंस नहीं मेंटेन कर रहे हो, आप उन्हें आइसोलेट कर देते हो कोई भी फंक्शन है सोसाइटी में, एंड यू आर नॉट जस्ट कॉलिंग देम, तो दैट इज़ योर सोशल बॉयकॉट एंड इट कम्स अंडर क्लॉज EB। EC defines victim, again very important. Who is a victim under this act? Any individual who falls within the definition of scheduled caste and scheduled tribes is a victim। कहाँ पे डिफाइन है, 2(1)(c) में डिफाइन है, जो कि रेफर करता है आर्टिकल 366 क्लॉज 24-25 में। एंड हु हैज़ सफर्ड और एक्सपीरियंस फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मॉनेटरी हार्म और हार्म टू प्रॉपर्टी as a result of commission of any offence under this act includes relatives, legal guardian and legal heirs। तो विक्टिम जो है सबसे पहली कंडीशन, इसको अगर आप बाइफर्केट करोगे तो वो सबसे पहले होना चाहिए SC या ST से बिलोंग करना चाहिए, जो कि 2(1)(c) में डिफाइंड है, जो कि फर्दर आर्टिकल 366, 24 एंड 25 क्लॉज में डिफाइंड है। सेकेंडली, कमीशन हुआ उनके अगेंस्ट एक ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस एक्ट, जिसकी वजह से फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल और इवन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी कुछ भी सफ़र
किया है उन्होंने, कोई भी हार्म हुआ है उनकी प्रॉपर्टी को, सफरिंग और हार्म, प्लस इसमें कौन आ जाएगा, उनके लीगल एयर्स और गार्जियन भी विक्टिम ही होंगे, ठीक है, दिस इज विक्टिम. EC. Now ED talks about witness, means any person who is acquainted with the facts and circumstances or is in possession of any information or has any knowledge necessary for the purpose of investigation, inquiry or trial of any crime involving an offence under this act. उसके बारे में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप जानते हैं कि इस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में वो ऑफेंस हुआ, और who is or may be required to give information to or to make a statement or produce any document during investigation. जो भी रिक्वायर्ड है टू मेक एनी इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट और कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स अ विक्टिम ऑफ सच ऑफेंस. ठीक है, तो व्हाट इफ देयर इज़ अ क्वेश्चन कि क्या विक्टिम एक विटनेस हो सकता है अंडर द SC/ST एक्ट? योर आंसर इज यस. ओके, तो कोई भी पर्सन जो अक्वेंटेड है फैक्ट सर्कमस्टांसेस से, जिसको बुलाया जा सकता है स्टेटमेंट देने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट कॉल किया जा सकता है जिसके बिहाफ पे, वो विटनेस है. नाउ F स्टेट्स that words not used here and defined under IPC, Evidence Act or CRPC shall be deemed to have meanings respectively assigned. तो जो एक्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, but reference can be made to these act or enactment. Now subsection 2, any reference in this act to any enactment or any provision thereof shall, in relation to an area in which such enactment or such provision is not in force, be construed as a reference to the corresponding law जो कि उस एरिया में. तो यहाँ पे जो भी रेफरेंस है, अगर फॉर एग्जांपल अब तो BNSS एंड BSA है, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ ट्राइबल एरियाज़ को एक्सक्लूड किया हुआ है, तो वहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग लॉ होगा तो हम उसके इक्विवेलेंट उसको कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे. ठीक है, तो नाउ लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज द डेफिनेशंस अगेन. A से एट्रोसिटी, B से कोड, ब्रो कोड, B ब्रो कोड याद रहेगा. BB डिपेंडेंट, BB एज इन बेबी, बेबी इज अ डिपेंडेंट. BC economic boycott. BD is your exclusive special court. BE forest rights. B as in BEE, B मधुमक्खी कहाँ पे होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, तो BE फॉरेस्ट राइट्स, फॉरेस्ट से रिलेट कर लो. BF manual scavenger. Then BG पब्लिक सर्वेंट, BG एज एन जो पंजाबी में BG बोलते हैं, BG चाहते हैं कि आप पब्लिक सर्वेंट बने, आपके फैमिली का ड्रीम होता है आप पब्लिक सर्वेंट बने, तो जस्ट रिलेट टू दैट, BG पब्लिक सर्वेंट. C simply scheduled caste and scheduled tribes. D for special court. E special public prosecutor. EA schedule. EB social boycott. EB social boycott. EC victim. ED witness. EC victim, ED witness. Khatam. F is the last one, that just says that reference will be made to CRPC, IPC. Alright, so try to memorize as much as you can, and then we'll begin with the second chapter. Thank you.